हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए TS गेरवाल की बुक से चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और अभी हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। इसका मतलब है कि जो पार्टनर की मृत्यु हो गई है उसके कानूनी उत्तराधिकारी को फर्म के द्वारा कितना पैसा दिया जाएगा जो कि उस मृत पार्टनर का ही हिस्सा है। So let us see. Question number 23. P, Q and R were partners in a firm sharing profits in 2:1 ratio. The partnership deed provided that on the death of a partner, his executors will be entitled to the following. Interest on capital at the rate of 12% per annum. Interest on drawings at the rate of 18% per annum. Salary of rupees 12,000 per annum, मतलब 1,000 rupees per month. Share in the profit of the firm up to the date of death on the basis of previous year's profit. मतलब जितने भी दिन वो पार्टनर जीवित रहा है इस साल, उसका प्रॉफिट निकालने के लिए पिछले साल के प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाएगा। P died on 31st May 2020, मतलब इस महीने का इस साल का सिर्फ 2 महीने का ही प्रॉफिट इसे दिया जाएगा। ना केवल प्रॉफिट परंतु इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 31 मई तक ही दिया जाएगा। हिज कैपिटल वाज रुपीज़ 80,000. He had withdrawn rupees 15,000 and interest on his drawing was calculated as rupees 1,200. Profit of the firm for the previous year ended 31st March 2020 was rupees 30,000. अब पॉइंट डी में कहा है कि पिछले साल के प्रॉफिट पर ही डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा इस साल का 2 महीने का बनाया जाएगा। सो वो प्रॉफिट है 30,000. प्रिपेयर पीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। इन दिस केस इट इज P, मीन्स लीगल हेयर ऑफ P. लेट अस सी P's कैपिटल अकाउंट. So solution 23. In the books of a firm, P's capital account, that is deceased partner's capital account. Now in the question it is given opening balance. So opening balance, so by balance brought down rupees 80,000. फिर पॉइंट ए में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम. सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब 80,000 उसका कैपिटल है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू प्रोवाइड 12%, बट ओनली फॉर 2 months बिकॉज इन दिस फाइनेंशियल ईयर he was with the firm only for the month of April and May. So the calculation will be 1,600. Then drawings भी है और interest on drawings भी है. So 2 drawings जो है वो है 15,000 और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज 1,200. फिर सैलरी है. सो बाय सैलरी 1,000 इंटू 2, सिर्फ 2 ही महीने का सैलरी देना है. फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. सो वी विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट will be calculated on the basis of last year's or previous year's profit. So it will be 30,000 previous year's profit. उसमें रिटायरिंग पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर P का हिस्सा है 2/5, but only for how many months? 2 months. So when we calculate this we will get rupees 2,000. That's all. Now we will calculate the closing balance and that will be transferred to executor's account. So to P's executor. क्यों लिख रहे हैं यहाँ P's executor account? क्योंकि P की मृत्यु हो गई है और P खुद नहीं ले जा सकता, इसलिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा जो भी फर्म के तरफ से बनता है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर.
So here grand total, we will make first grand total 85,600 and the balancing figure is 69,400. That is the solution. Next question, question number 24. Iqbal and Kapoor are partners in a firm, are in partnership sharing profits and losses in 3:2. Kapoor died 3 months after the date of the last balance sheet. According to the partnership deed, his legal heir is entitled to the following. First, his capital as per the last balance sheet, interest on above capital at the rate of 3% per annum till the date of death. Now, यहाँ इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि यहाँ अगर कैपिटल एट द रेट ऑफ 3% पर एनम लिखा है तभी हमको 3 महीने के लिए कैलकुलेट करना, महीने हिसाब से कैलकुलेट करना. इफ़ द वर्ड पर एनम इज़ मिसिंग then we have to allow only 3% or the said percentage on the capital balance. Point C, his share of profit till date of death calculated on the basis of last year's profit. और ये 3 महीने का उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो पिछले साल के प्रॉफिट पर बेस्ड रहेगा, जो कि क्वेश्चन में कहीं पर दिया हुआ है. His drawings are to bear interest at an average rate of 2% on the amount irrespective of the period. यहाँ पर ये खास ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 2% लिखा है लेकिन पर एनम नहीं लिखा है. अगर यहाँ ये नहीं लिखा रहता इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड तो भी हमको 2% ही देना है, टोटल अमाउंट पर 2% देना है, ना कि मंथ वाइज कैलकुलेट करना. मंथ वाइज कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमें पर एनम क्लॉज को देखना चाहिए. The net profit for the last 3 years after charging insurance premium were rupees 20,000, rupees 25,000 and rupees 30,000 respectively. Kapoor's capital as per balance sheet was rupees 40,000 and his drawings till the date of death was rupees 5,000. Draw Kapoor's capital account to be rendered to his representative. Now यहाँ कह रहा है नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम. तो सही है, इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म का इंश्योरेंस प्रीमियम है, पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है. तो यही वो प्रॉफिट है जिसका हमें एवरेज निकालना है. नाउ लेट अस प्रिपेयर डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सॉल्यूशन 24. इन द बुक्स ऑफ अ फर्म Kapoor's capital. So first we will write by balance brought down, that is the opening capital balance. अगर डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा है इसका मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस ही है. इट इज़ 40,000. देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 3% है. सो 3 मंथ्स के लिए ही देंगे क्योंकि कपूर डाइड आफ्टर 3 मंथ्स दिस फाइनेंशियल ईयर. 40,000 इंटू 3% इंटू 3 months, that is 300. Then by profit and loss suspense account. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में कह रहा है लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर, एवरेज प्रॉफिट पर नहीं कह रहा. 3 साल का प्रॉफिट हालांकि दिया हुआ है तो हमेशा ऐसा लगता है कि एवरेज ही निकालना होगा, लेकिन क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि टू बी कैलकुलेटेड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स. सो व्हाट इज़ द लास्ट ईयर प्रॉफिट? 30,000. 30,000 में उसका हिस्सा है 2/5 और उसको भी देंगे 3 मंथ्स के लिए क्योंकि 3 महीने ही वो जीवित रहा इस फाइनेंशियल ईयर. सो इट विल बी 3,000. देन ड्राइंग्स पे आ जाइए. तो 2 ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल बैलेंस को कम करता है. 5,000 का उसने ड्रॉ किया है और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. On 5,000 we have to give only 2% irrespective of the period. पूरे पीरियड के लिए हमें 2% देना क्योंकि पर एनम वर्ड इज नॉट प्रिंटेड इन द क्वेश्चन. सो इट इज़ 100. नाउ वी विल कैलकुलेट द बैलेंस. ग्रैंड टोटल इज 43,300 and 2 executors account. So Deepak's executor, Kapoor's executor.
balancing figure. Now the balancing figure is 38,200. क्योंकि कपूर की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, लीगल एयर को यह अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, ना कि टू बैंक। अगर हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे में भी देते हैं तो पहले कपूर का कैपिटल अकाउंट लीगल एग्जीक्यूटर के नाम से ट्रांसफ़र होगा, फिर लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट से कैश पेमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण who were sharing profits in the ratio of 4:2:4 as at 31st March 2012 was as under. बैलेंस शीट दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, बिल्स पेबल है, लोन है, कैपिटल है, और एसेट्स की तरफ है कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड साधुज लोन। नाउ साधु डाइड, देखिए साधु का लोन भी है और साधु डाइड ऑन 31st जुलाई। सो कितने महीने बाद इसकी मृत्यु हो गई? 3 महीने बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद। जुलाई भी पूरा लेंगे बिकॉज इट इज़ 31st जुलाई। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years. दिस इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा, फिर उसका हिस्सा देंगे, वो भी गेनिंग रेशियो में। कौन देगा? Sadhu has died, so Raja and Karan will give in gaining ratio Sadhu's portion of goodwill. Sadhu's share of profit or loss till the date of his death was to be calculated on the basis of sales. सेल्स के ऊपर प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट पर साधु का इस साल के 4 महीने का प्रॉफिट देना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 अमाउंटेड टू ₹45,000 एंड दैट फ्रॉम 1st April to 31st July 2012 टू ₹2,70,000। अब पिछले साल का सेल्स 4,50,000 था और इस साल 4 महीने का सेल्स 2,70,000 है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 वॉज कैलकुलेटेड एज ₹1,25,000। पिछले साल प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जब सेल्स 4,50,000 था तो प्रॉफिट 1,25,000 था। तो उसी हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा कि अगर सेल्स 2,70,000 है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वर ₹55,000। तो लास्ट 3 years का एवरेज ही निकाल कर दे दिया। प्रिपेयर साधुज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। लेट अस सी द सोल्यूशन। Solution 25. In the books of a firm, Sadhu's capital account. So first we will write the balance brought down. Balance brought down. Credit balance of Sadhu 80,000. Then question में कह रहा है कि interest on capital भी देना है. So by interest on capital 80,000 का 5% for 4 months. It is 1,333. Now अब उसे प्रॉफिट भी देना है, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट सेल्स पर डिपेंडेंट है, तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हेन सेल्स इज इक्वल टू एंड व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर सेल्स 4,50,000 था तो प्रॉफिट था 1,25,000। इसलिए इन 4 महीनों का जो सेल्स है वो है 2,70,000। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1,25,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2,70,000। तो प्रॉफिट होना चाहिए 75,000। लेकिन ये तीनों पार्टनर का है। फर्म का प्रॉफिट है 4 महीने का, 4 months का, बट इट बिलोंग्स 75,000 बिलोंग्स टू ऑल द 3 पार्टनर्स। सो साधुज प्रॉफिट इज इक्वल टू
75,000 इंटू 2/5, क्योंकि इनका रेशो है 4:2:4 मीन्स 2:1:2. So Sadhu has died, so 2/5. So the answer is rupees 30,000. So here we will write rupees 30,000. Now treatment of goodwill. So let us calculate goodwill first. Goodwill of the firm is equal to 2 times the average profit of last 3 years. Average profit is how much? 55,000. So it is 1,10,000. Now Sadhu's goodwill is equal to 1,10,000 into 2/5. That is equal to 44,000. अब इस 44,000 गुडविल को दूसरे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है राजा और करण वो गेनिंग रेशियो में देंगे. सो दिस 44,000 विल बी शेयर्ड बाय 44,000. इनका गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:2. कैसे पता चला? ये वाला पार्टनर तो मर गया, फर्स्ट पार्टनर. नाउ बचे कौन है? 1:2. पहले भी उनका रेशियो 2:4 था, अभी भी इनका रेशियो 2:4 है. देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर. Before also they were having their ratio 2:4 and now also they are having 2:4, 1:2, 1:2 or 2:4, 2:4. So this new ratio will be the gaining ratio. So new ratio is equal to gaining ratio. Therefore, so when we break it, we get, if we break it in the ratio 1:2, it is 14,667 and 29,333. So we will write here in the capital account now. Coming back to capital account, by Raja's capital account, 14,667 and by Karan's capital account. That is the treatment of goodwill, 29,333. Now बैलेंस शीट में देखने से साधु का लोन भी है, तो इट इज़ डेबिट बैलेंस, सो इट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड, टू साधुज लोन ₹20,000. बाय जनरल रिजर्व 4,000. 10,000 में से उसका हिस्सा रहेगा 4,000. नाउ ग्रैंड टोटल दिस साइड इज 1,59,333. 1,59,333 इधर बनाने के लिए यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर इंसर्ट करना पड़ेगा जो कि 1,39,333, और यही वो बैलेंसिंग अमाउंट है जो साधु के एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा. सो टू साधुज एग्जीक्यूटर. Balancing figure, because Sadhu is no more with us and as a result Sadhu himself cannot come and receive, so entire money payable will be transferred to legal representative of Sadhu. साधु के उत्तराधिकारी को कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. So that is the solution. I hope you are understanding the concept well. If you are having any doubt, you can put it in the comment section. Please write comments in the comment section. Please like, subscribe and share the video. Thank you so much for watching.